The day when you started your journey as a college student and now you are sitting here as an entrepreneur running a business. पूरा एक एजेंसी खोलना, उसके बाद सेकंड एजेंसी खोलना, दोनों अलग अलग नीश में वर्क करना. Oh my God, लोगों से एक बिजनेस रन नहीं होता है, ये दो बिजनेस खोल के बैठे हैं. And that too in college, you are in third year, right? Yeah. Even if you are in school or college or somewhere, it is not compulsory कि आपके पास बहुत high degree होनी चाहिए. और even if you are in school or college, you can still run your startup, right? So the Social Wedding is a startup, and the Social Glory is not a startup. Basically, it's a agency which take care of the brands and उनके जो प्रोफेशनल शूट्स होते हैं, उनके जो ब्रांड कंटेंट होता है, कपल को एक पूरा पेज मिल जाता है उनकी पूरी कंप्लीट वेडिंग का, जिसके अंदर वो अपनी पूरी वेडिंग को देख सकते हैं दोबारा. You have digitalized the entire wedding experience. There are some special moments, जैसे वरमाला we can say, and there are some special entries of the couple. Correct. तो इनको we will capture in two angles. इसमें थोड़ा प्ले मेरा GCC के साथ रहा है. ठीक है. So GCC के अंदर जब मैं आया तो यहाँ पर is a culture of startup. So hey everyone, thank you so much for joining in and welcome back to another episode of podcast with GCC. And guess who we have right now? Another entrepreneur who became entrepreneur from a student. So we have Vansh Khandelwal. So thank you so much Vansh for coming out and taking your precious time for this podcast. Thank you so much sir for welcome. So first of all, how are you feeling to become an entrepreneur? I mean, the day when you started your journey as a college student and now you are sitting here as an entrepreneur running a business. So how does it feel first of all? Sir, it's like I didn't think कि इतना बड़ा हो जाएगा. I just start with a time कि this reels मैं बना सकता हूँ and then ये यहाँ से फिर पूरा एक एजेंसी खोलना, उसके बाद सेकंड एजेंसी खोलना, दोनों अलग अलग नीश में वर्क करना. and अभी it's like very difficult भी हो रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में. So basically you are running two businesses simultaneously. Yeah. Oh my God. लोगों से एक business रन नहीं होता है, ये दो business खोल के बैठे हैं. And that too in college. You are in third year, right? Yeah. मतलब थर्ड ईयर में दो बिजनेसेस खोलना, इट इज़ वेरी बिग थिंग एंड इट इज़ समथिंग विच एवरीबडी शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड कि इवन इफ यू आर इन स्कूल और कॉलेज और समवेयर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपके पास बहुत हाई डिग्री होनी चाहिए और यू हैव टू बी हाईली क्वालिफाइड टू रन अ स्टार्टअप. इवन इफ यू आर इन स्कूल और कॉलेज, यू कैन स्टिल रन योर स्टार्टअप, राइट? So basically I have two agencies. First is the Social Glory and the Social Wedding. So the Social Wedding is a startup. And the Social Glory is not a startup. Basically, it's a agency which take care of the brands and उनके जो professional shoots होते हैं, उनके जो brand content होता है, story line, timelines और ये सब को set करने के लिए हम लोग उनके digital presence को maintain करते हैं. And secondly, the Social Wedding is a startup. इसके अंदर what we do is we curate 2 day of complete diary of the couples, जिसके अंदर actually होता ये है कि कपल को एक पूरा पेज मिल जाता है उनकी पूरी कंप्लीट वेडिंग का, जिसके अंदर वो अपनी पूरी वेडिंग को देख सकते हैं दोबारा. अगर आपकी कभी वेडिंग हुई है, अगर जैसे आपकी वेडिंग हुई है तो आपने कभी अपनी वेडिंग की इमेजेस को दोबारा नहीं देखा. बट साइमल्टेनियसली अगर अपन देखें तो कभी भी आपको अपना वेडिंग का कुछ देखना हो तो आप कभी भी पेजेस, कभी भी सीडीज वगैरह को उठाकर नहीं देखोगे. तो यही एक सोल्यूशन हमने निकाला है जिसके अंदर व्हाट वी डूइंग इज कि पूरा एक पेज बना देते हैं. तो देर आर कंप्लीट 100 स्टोरीज जो आपकी पूरी वेडिंग दिखा देती है. nice. तो ये पूरा वेडिंग डायरी हम उनको दिखा देते हैं, तो वो कभी भी उनको कोई मोमेंट देखना हो तो वो वहां से देख सकते हैं. Okay, so basically आप कह रहे हो कि that you have digitalized the entire wedding experience, right? तो पहले जहाँ पे हम बोलते थे कि फोटो एल्बम होता है, एक वीडियो बनती है, तो बोरिंग से एक्सपीरियंस को आपने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज, right? So for example, अगर let's say कि मेरी शादी है, right? And if I call you and your team and say कि भी मुझे ये memorable बनाना है मेरी शादी का experience, so what is your usual planning? I mean, if you can walk us around in like 60 seconds कि भाई अगर आपकी शादी है तो हम पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, and the outcome आपका ये होगा. So basically हम एक पूरा पेज क्रिएट करते हैं पहले पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड वो आपके पूरे हैशटैग्स होता है जो कपल हैशटैग्स आजकल यूजुअली चलते हैं. एंड उसके अंदर व्हाट वी डू इज कि आपके जो जैसे करंटली देयर इज अ इवेंट, तो आपका जो इवेंट होगा उसके जस्ट अगले ही टाइम पे आपकी जो स्टोरीज है वो पोस्ट होना चालू हो जाएगी. तो एंड ये पोस्ट होना चालू हो जाएगी तो यू हैव कंप्लीट वेडिंग स्टोरीज एंड देयर आर 25 रील्स व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग इन एंड दैट इज इन कॉन्सेप्ट्स. So there are Bollywood concepts जो कि Bollywood theme recreate कर देता है. There are some emotional concepts.
देयर आर सम इंटरव्यूइंग कॉन्सेप्ट कि आप अपने फैमिली मेंबर के लिए एक इंटरव्यू दे रहे हो, एक बिट्स दे रहे हो, एंड फिर हम उनको पूरे वेडिंग सीन से रिक्रिएट करके उसको नया बना देते हैं. Okay. तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ताकि जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे एंड इट्स बिकम वायरल. Okay. दैट्स व्हाई. Okay, and you are saying that you are okay. So once you are done with this, so are you also providing that entire video जो traditionally हम लोग बनाते हैं कि पूरी शादी का एक सिंगल वीडियो या फोटो एल्बम ऐसा कुछ भी आप देते हो या वो अलग से होता है? Well, this is the add-on to my service. Okay. And actually, this is the new thing in the market. No one is doing in the portrait form जो एक मूवी देते हैं portrait form के अंदर. But we are now doing this and we are giving approximately 3 to 4 minute movie of your complete wedding. जो पूरा इंस्टाग्राम पे शोकेस हो सकता है. Okay, so is it also include the pre-wedding shoot or something like No, that? it's not included. वो सिर्फ Only for the 2-day weddings. Okay, 2 days wedding. So you are saying that मान लो कि हल्दी का फंक्शन है कुछ भी है तो immediately उसके बाद फिनिश होने के बाद we can see. Yes. तो फिर how do you manage your editing post production? इतनी जल्दी कैसे manage कर पाते हो? Actually, well, these are my skills. Okay, great. But actually, there are 2 people in your wedding. So one is for shoot. Correct. वो shoot करता है and suddenly जैसे ही function खत्म होता है, event खत्म होता है, वो अपना जो extra में जो जाना चाहता है उसको अपनी editing सब कुछ दे देता है, सारा content देता है and he is starting posting. Okay. तो कोई भी moment miss नहीं होता and there are some special moments जैसे वरमाला we can say. And there are some special entries of the couple. Correct. तो इनको we will capture in 2 angles. Okay. ताकि और अच्छा बने एंड कोई भी एंगल मिस ना हो. Okay, okay. So basically आपने बोला कि ट्रेडिशनल शादी को you have now digitalized on Instagram and उस मोमेंट को वो relive कर सकते हैं maybe after 1 year, 2 year, 3 years. So lifetime onwards. Yeah. So instead of watching an entire video clip or boring clip, आप बहुत specific moments को relive कर सकते हो. You can watch it in a 15 second, 20 second. There are moments जो कि अपन 15, 20 seconds. Okay. And who manages that particular page after the wedding is over? Like your agency or? Well, we manage the page after the wedding is just for 10 days. Okay. We don't manage the page for the whole life. Just 10 days में हम उनको हमारे जो जितने भी deliverables होते हैं वो हम complete कर देते हैं and the page is with them only. Okay, so now they have the access of their page और फिर वो उनको manage करना होता है. Yes. Okay. So ये इतना interesting idea आया कहाँ से? मतलब मेरा question ये है कि because as you said that not most of the people are doing, तो आपको कैसे interesting ये idea है कि ये कर सकते हैं? Well, there is a story. तो I met a photographer and he asked me कि तुम decor का shoot ले सकते हो. तो I said yes. Then suddenly जैसे मैंने first wedding करी तो मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ अचानक. इट्स इंस्टिंक्ट कि मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि व्हाई शुड आई डू नॉट क्रिएट कंटेंट फॉर कपल्स. तो वहां से आई थॉट कि एक एंट्री का मैंने शॉट लिया एंड आई फील लाइक कि ये वर्क कर सकता है. सो आई डिड माय फर्स्ट वेडिंग फॉर फ्री. Okay. I didn't charge anything and I posted on my page social wedding. And that's gone viral. Approximately I have 80,000, 20,000, 30,000 views on all of my reels. तो वहाँ से फिर initially मेरे पास bookings आना चालू हुए and in this upcoming July I am completely booked for approximately 20 days. And my whole team is booked. Now not I am only, my whole team is booked for 20 days. Okay, great. And how big your team is? I mean, how many photographers, how many editors, something like that? Well, and Social Wedding and Social Glory, they are a combined team, and it's approximately of 8 people. Okay. And do you also take people from outside on a project basis just for the wedding and then? Well, it's a freelancing. I don't do freelancing. It's just because कि वो मेरी थिंकिंग है कि मैं काम कम कर लूंगा बट मैं काम मेरे लेवल का करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा. आई डोंट ट्रस्ट ऑन फ्रीलांसर्स क्योंकि आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद फ्रीलांसर्स क्योंकि मेरा काम पूरा खराब हो गया था एंड आई हैव टू पे. मेरा लॉस भी हुआ और मेरी रेपुटेशन भी खराब हुई. तो उसके बाद से आई डिडंट do any freelancing things. So these 8 people or 8 to 10 people you are saying you have in-house full time on a salary basis? Yes. Oh my god. मतलब in just 3 years, third year में अभी वंश and he has not started मतलब instead of doing taking jobs he has started giving jobs and he is paying salaries to 8 to 10 people full time in house. और I think वो आपसे मतलब आपके एज के हैं college student क्या है full time मतलब basically they are not all of my age. कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं और कुछ बराबर के भी हैं.
Okay, and still you are able to manage all these people very well, हाँ. right? इजीली बहुत इजीली ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये जो स्किल्स आपके अंदर है, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स जो आपने बोला कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेल वर्स इन ऑल, लाइक एचआर भी होना चाहिए, मार्केटिंग भी आनी चाहिए, सब कुछ, मतलब एवरी एस्पेक्ट आपको कवर होना चाहिए। तो ये कैसे सीखा, मतलब स्टार्टिंग से स्कूल के डेज से आपको पता था कि मेरे को ये करना है, या लेटर सूनर ये रियलाइज हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? इसमें थोड़ा प्ले मेरा जीसीसी के साथ रहा है। ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड इज स्कूल के टाइम से मुझे ये पता था कि आई हैव टू डू बिजनेस, आई डोंट वांट टू एनी जॉब, मेरे को जॉब में नहीं जाना था कभी भी, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। सो जीसीसी के अंदर जब मैं आया तो यहाँ पर इज अ कल्चर ऑफ स्टार्टअप। करेक्ट। यहाँ पे मुझे हर टाइम ये सिखाया है कि स्टार्टअप इज एवरीथिंग, स्टार्टअप करो, खुद सीखो, खुद कुछ करो, हमेशा यही सिखाया है। तो यहाँ से मैंने ये सीख के कुछ सोचा था, स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, बट समहाउ मैंने एक छोटा सा इंस्टिंक्ट लेके ये स्टार्ट किया। आई डिडंट थिंक कि इतना बड़ा हो जाएगा, बट इट्स बिकम ह्यूज। अभी मेरे लेवल के हिसाब से इट्स बिकम वेरी ह्यूज। तो जीसीसी इज एवरीथिंग कि मेरे को स्टार्टअप के लिए प्रमोट किया गया है, मतलब स्टार्टअप के लिए मुझे सिखाया गया है कि जीसीसी कुछ कर, जीसीसी ने ही स्टार्टअप सिखाया है, बस दैट्स इट। फॉर मतलब इफ मैं जीसीसी में नहीं होता ना तो आई डोंट हैव अ स्टार्टअप, मैं वही घूम रहा होता थर्ड ईयर में, मस्त मजे कर रहा होता कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज थिंग्स, बस यही है। तो जैसे आपने बोला कि जीसीसी में आपने ये एनवायरनमेंट देखा, राइट? सो ऐसा भी है कि जो आपने उस करिकुलम में, सिंस यू आर इन थर्ड ईयर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जो भी अभी तक सीखा, सो डू यू वांट टू कोट सम सब्जेक्ट्स और एनीथिंग दैट यू लर्न एज अ थियोरी और इन क्लास एंड देन यू इम्प्लीमेंटेड इन योर स्टार्टअप एंड स्टिल दे आर हेल्पिंग यू, कि भाई हाँ ये लर्निंग्स मुझे अभी भी हेल्प करती हैं, ऐसा कुछ? वेल स्पेशली थैंक्स टू अंकुर सर। Okay. उन्होंने मुझे मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ सिखाया है। मतलब कभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी मेरे टीचर को रीच आउट नहीं कर सकता, कभी भी मेरे मेंटोर को रीच आउट नहीं कर सकता। मैं कभी भी कॉल किया है सर को एंड उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई है मेंटोरशिप में, कि मेरे को प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में टीम मैनेजमेंट में, मुझे फाइनेंशियल्स मैनेज करने में बहुत ज्यादा, अभी भी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। एंड सेम फॉर मार्केटिंग, कि मार्केटिंग करनी कैसे है। तो ये चीजें मेरी यहाँ सेक्टर, यहाँ ये जितने भी सेक्टर्स है मेरे यहाँ के सॉल्व हुए हैं और बहुत हद तक मुझे क्लियर है। एंड आगे अभी भी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ लाइफ टाइम कनेक्टेड रहूंगा ही। आफ्टर थर्ड ईयर भी ऐसा नहीं है कि मेरी डिग्री यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और इवन कॉलेज ऑल्सो जीसीसी जो है वो मुझे इतने जल्दी ऐसे नहीं होगा कि लेट गो कर देगा, दैट्स व्हाई। ओके ओके। एंड जो आपने बोला कि प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, राइट? सो व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम दैट यू थॉट ओके यार इसको कैसे सॉल्व करूं, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ है और इसमें रिस्क बहुत हाई है, बिकॉज अगर होगा तो बहुत वाह होगा और नहीं होगा तो आई हैव समथिंग टू लूज, तो स्टेक्स पे बहुत कुछ है। तो ऐसा कुछ फर्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ में स्टार्टअप में कब आया? रिसेंटली इट हैपेंड। ओके। आई हैव टू इन्वेस्ट सो मच। एक हैचबैक कार आ जाती है, ओके, दैट्स अ गुड, मुझे इतना इन्वेस्ट करना था और वो बहुत रिस्क पे था, तो आई जस्ट थॉट कि करूं नहीं करूं, बट आई डिड। और ये सब कुछ मैंने रिस्क लिया और बहुत अच्छा भी चल रहा है। मतलब आई थॉट कि ये खराब ना हो जाए, सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, जो कुछ किया, जितनी मेहनत अभी तक करी, सब खराब ना हो जाए, बट अभी वो बहुत अच्छा चल रहा है। एंड टच वुड वो आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। नो दैट्स ग्रेट। अगर आप रिस्क लोगे तो फिर ऑफ कोर्स रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो यहाँ पे आप बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, एज यू सेड कि मेरे को फाइनेंशियल्स मैनेज करने में, टीम मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको कितना अमाउंट लगा टू स्टार्ट विद अ बिजनेस, और मे बी जीरो, राइट? सो हाउ डिड यू अर्न दैट? मतलब पहले किया फिर कमाया, या पहले लगाया फिर कमाया? हाउ डिड इट हैपन? So basically start से मैंने सोशल ग्लोरी स्टार्ट किया, it was 8 August last year. Okay. And that is 2023 only. Yeah. Okay. तो मेरे को अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। That's great. मेरे को अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। तो 8 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था एंड मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बोला था कि will you be able to manage my social media? Okay. मैंने कहा okay. तो I don't have my phone, I don't have any iPhone or anything to shoot. I took my friend's phone कि मैं फर्स्ट शूट कर लेता हूँ एंड आई डिड। उसने मुझे पेमेंट करी, फिर सेकेंड डे सेकेंड क्लाइंट आया, मैंने अप्रोच करना चालू किया ऑफलाइन। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑफलाइन अप्रोचेस चालू किए। ओके। एंड इट बिकम वेल, आई हैड 19 clients in 2 months. Great. And I didn't even take a penny मेरे लिए स्टार्टिंग में कि मैं खर्च कर दूं और मैं निकाल दूं।
मैंने जो सिर्फ री इन्वेस्ट किया है, और अभी आई हैव मेनी थिंग्स, आई कैन डू एवरी शूट, मतलब जिस टाइप का भी शूट होता है वो सब अभी मैं कर सकता हूँ. आई हैव कैमराज, आई हैव एवरीथिंग जिससे भी शूट हो सकता है. तो अभी बिजनेस में कितना आप बोल सकते हो कि आपके एसेट, मतलब कितने वर्थ ऑफ एसेट हैं इन्वेस्टेड अभी ऑलरेडी, सिंस यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट टेकिंग आउट एनी मनी, सो ऑफ कोर्स कितना, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ है मतलब अच्छा खासा अमाउंट है अभी के हिसाब से. बिल्कुल है. ओके, एंड व्हाट इज योर प्लान फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years? आई मीन यू वांट टू कंटिन्यू दिस, एक्सपैंड करना है, मल्टीपल सिटीज में जाना है, स्टेट्स में जाना है, कैसे प्लान कर रहे हो एक्सपेंशन? For now, अभी आई एम प्लानिंग कि I have 2 agencies and which is running very good. अभी 1 साल के लिए, 3rd year तक, आप जस्ट 3rd year में एंटर हुआ. Yes, yes. तो कंप्लीट 3rd year अभी तो यही दोनों हैं. ठीक है. इसके अलावा अभी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट हाँ आई थिंक समथिंग कि मैं मेरा खुद का ब्रांडिंग चालू करूँ. Okay. It's just because अभी की कंटेंट क्रिएशन में जहाँ फेस है वहीं ट्रस्ट है. करेक्ट. जहाँ फेस आ रहा है वहीं ट्रस्ट बढ़ रहा है. तो उसी के लिए अभी आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कि मैं खुद का कंटेंट क्रिएट चालू कर रहा हूँ. एंड सून, वेरी सून आई लॉन्चिंग दिस. Okay, so you have multiple things in pipeline जिनको आप one by one launch करोगे. I have 3 things in my pipeline. 3 things. तो मतलब विजन क्लियर है कि हाँ मुझे ये करना है. हाँ. राइट, एक्सपैंड करना है. तो उसके लिए विल यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ फंडिंग, और फंड रेज के लिए जाओगे, या फिर खुद से ही जो कमाया है दैट यू विल रीइन्वेस्ट? मैं फंड रेज के लिए तो आई डोंट गो, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता. आई डोंट वांट एनी पार्टनरशिप. ठीक है. एंड मैं मेरे खुद के ही, मतलब जो फंड्स होंगे जितने भी आई हैव अर्न, उनसे ही मैं रीइन्वेस्ट करूंगा. इधर आई विल हैव अ गुड गॉडफादर जो मेरे को एक बार दे देता है, बट आई विल रीपे ऐसा होता है. राइट. तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, बिकॉज सिंस आई थिंक योर इंडस्ट्री इज कंप्लीटली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब आपके कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप बोलो कि ये यूज कर लो एंड आफ्टर सेल सपोर्ट में दे दूंगा. तो बिकॉज आई एम ऑल्सो इन सर्विस इंडस्ट्री, और ये फील होता है कि नॉट एवरी क्लाइंट इज सेम, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. एंड कई बार आउट ऑफ 10 क्लाइंट्स और मे बी 50 क्लाइंट्स, एक क्लाइंट ऐसा फंसता ही है कि वॉट एवर यू गिव, हाउ मच एफर्ट यू गिव, वो सेटिस्फाई होता ही नहीं है. राइट, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है. तो हाउ डू यू मैनेज दीज क्लाइंट, बिकॉज जो अमाउंट दिया था वो किसी और चीज के लिए दिया था, एंड नाउ ही इज आस्किंग मोर एंड मोर इन द सेम अमाउंट. तो क्या करते हो फिर ऐसी सिचुएशन? सर, इट वाज माय स्टार्ट. अभी भी मेरा स्टार्ट ही है. was नहीं, अभी भी मेरा स्टार्ट ही है. तो अभी आई एम जस्ट बिल्डिंग रिलेशंस. ओके. मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इतनी चीजों का इतना चार्ज कर रहा हूँ, इतनी चीजों का इतना, बस कस्टमर रिलेशन, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे सिखाया भी गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैं सिर्फ कस्टमर रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ कि अगर क्लाइंट को एक इतनी सी चीज भी एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं इतना चार्ज लूंगा इस चीज का. मैं फ्री में भी कर देता हूँ. बहुत सारी चीजें अभी आई एम डूइंग इन फ्री. तो बस जस्ट कस्टमर रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ. एंड सेकंड, कभी कभी होता है कि कुछ क्लाइंट्स आके बीच में बहुत दिक्कतें देते हैं, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन कभी हम मैच ही नहीं कर पाते. एंड आई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने बहुत क्लाइंट्स लूज भी करे हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्लाइंट्स को अभी तक रिटेन कर रख रखा है. ये सबके बिजनेस में होता ही होता है कि कोई ना कोई क्लाइंट जाता ही जाता है. बट वो फिर हमारी टीम एक बार और ट्राई करती है, वापस ट्राई करती है, वो हो जाता है. बट मतलब ऐसा होता है कि 10 में से 8 क्लाइंट तो रिटेन करते ही करते हैं. 2 मे बी समटाइम्स कि वो चले जाते हैं, या फिर उनको हमारा कभी कभी काम भी पसंद नहीं आता. ऐसा होता है. ओके, तो जो आपने बोला कि क्लाइंट रिलेशनशिप इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग इन योर बिजनेस, एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस में होता है. तो अभी जो क्लाइंट आते हैं, तो क्या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो आगे रेफर करते हैं आपको, रेफरेंस से आते हैं, या अलग से मार्केटिंग करते हो? हाउ डू यू गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स? सर, अभी मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं सब रेफरल्स है. okay. मेरा मतलब आई कैन से, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा काम बहुत, मतलब खुद तारीफ नहीं करूंगा, बट मेरे को जब भी कोई क्लाइंट रेफर करता है वो ये बोलता है कि आपका कंटेंट क्रिएशन game is very good. That's why this is the point why I don't go in marketing. क्योंकि marketing is a different field and content creation is a different field. Yes. तो मैं I tried कि मैं marketing में भी जाऊँ. I had run performance marketing and everything, but वो मेरे से हुआ ही नहीं. तो अब मैंने सिर्फ एक niche choose कर ली. Why not just create content? वहाँ से मैंने content create किया, और बस content creation में ही मेरा referral चल रहा है. And मेरे पास I have इतना वर्क कि मैं मेरे खुद के पेजेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं मेरी खुद की मेंटल हेल्थ की अभी मेरे पूरी लग रखी है. दैट अभी तो ये ये तो सिचुएशन है, बिकॉज एज समबडी सेज ना कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, तो यू डू फॉर एवरीवन बट यू डोंट गेट टाइम
to do for yourself. तो अब एक क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज एज यू सेड कि योर प्राइमरी कोर बिजनेस इज कंटेंट क्रिएशन, बट वी हैव सीन कि सिंस एआई जब से आया है ना, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है, वो चेंज आया है, वो कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में आया है, वेदर इट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, शूट और कुछ। तो अब ये कैसे कोप अप करोगे या कोप अप कर रहे हो कि एआई को इंटीग्रेट कर रहे हो या एआई से compete कर रहे हो? How AI has impacted your business and helped your business? सर बेसिकली व्हाट आई फील, एआई आया है, एआई से इफेक्ट हुई है, लोगों की जॉब्स भी इफेक्ट हुई है, एंड द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है स्टिल एआई को रन करने के लिए एक इंसान तो चाहिए, और वो मैं हूँ। ओके। तो अभी तक तो आई एम नॉट यूजिंग एनी एआई। देयर आर सम स्मॉल एआईज जो मैं कभी कभी यूज कर लेता हूँ, कभी कभी मुझे हेल्पफुल कर देते हैं, बट अगर मैं एडिटिंग एप्स और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो उनमें भी एआई है। करेक्ट। तो वहां से मैं यूज कर रहा हूँ, अदर देन सच कोई एआई नहीं है जो मैंने परचेज कर रखा है। ओके। अभी आई एम नॉट लुकिंग कि मेरे को अभी तक लगता भी नहीं है कि हमारा जो काम है वो कोई एआई रिप्लेस कर सकता है। कोई एआई जाके शूट तो नहीं कर सकता अभी तक, तो वही वाली बात है। और शूट एंगल, स्टोरी लाइन, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस उसके अंदर जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, वो सब एआई नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिप्लेसेबल है ये। टाइम लगेगा, मे बी हो सकता है रिबोट्स आ जाएंगे, मे बी कुछ भी हो सकता है, आई कांट से, बट अभी 5 साल तो हैं, और 5 साल में मैं क्या कर लूंगा वो मुझे भी पता है, और 5 साल क्या पता एआई मेरा हो। करेक्ट, बस ये वाली बात है। ओके, सो मीन्स अभी आप ये बोल रहे हो कि लाइक जो बिकॉज यू आर इन अ बिजनेस व्हिच क्रिएट्स मेमोरीज, तो आप क्लियरली कह रहे हो कि एआई मेमोरीज नहीं बना सकता, एआई काम कर सकता है बट मेमोरीज नहीं बना सकता। Obviously. और वो क्लाइंट को चाहिए मेमोरी, और एज यू सेड कि कस्टमर रिलेशन एआई कैसे बनाएगा, एआई कैसे कस्टमर से बात करेगा। एग्जैक्टली, और वो जो ह्यूमन ट्रस्ट है कि फेस है कि हाँ मैं वंश से बात कर रहा हूँ, मुझे वंश जी से बात करनी है, वो एआई से नहीं आ सकता। सो यू आर इन अ सेफ जोन राइट नाउ, एंड टिल द टाइम यू आर सेइंग कि अगर वो आएगा तब तक मैं और आगे रेस में चला जाऊंगा। राइट जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सस्टेन कैसे करूंगा। करेक्ट। तो अभी जैसे सिंस यू आर डूइंग बिजनेस एंड यू आर डूइंग प्रीटी गुड अपने लेवल के हिसाब से, तो आफ्टर यू ग्रेजुएशन डू यू हैव एनी सेकंड, जिसे कहते हैं ना बैकअप प्लान बोलते हैं, कि अगर मान लो कि लेट्स से कि अभी तो कॉलेज में हो, सो आई हैव नथिंग टू लूज एज सच, मुझे ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है, बट लेट्स से आफ्टर 3 years व्हेन यू हैव फुल फ्लेजेड बिजनेस, कि अब तो या तो बिजनेस होगा या कुछ और होगा, सो डू यू हैव एनीथिंग एज अ बैकअप प्लान इन योर माइंड? आई हैव इट, आई थॉट ऑफ इट कि कब तक मैं इसको कितना बड़ा कर दूंगा, कहाँ तक पहुंच जाऊंगा। जयपुर में रह के भी इतना बड़ा नहीं हो सकता, बाहर जाके फिर उतना मैनेज करना बहुत हेक्टिक है, बट पॉसिबल तो है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी अगर अपन देखें तो फर्स्ट पे जो अभी कंपनी जिसका भी निकला है वो भी एक सॉफ्टवेयर मतलब ग्राफिक कंपनी है। करेक्ट। तो अभी तक तो मेरा कंटिन्यूएशन में ही है, बट आई हैव प्लान्ड समथिंग कि मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जरूर चालू करूंगा, जो कि मेरे को एक साइड इनकम और एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा, कि अगर मेरा यहाँ से कभी भी कोई लॉस होता है तो मैं वहां से रिकवर कर लूं, ताकि, और स्टार्टिंग से ही मेरे को ये था कि मेरा कभी भी बिजनेस एक जगह का ना हो, कभी भी ओवर स्टॉप ना हो। मैं आई वांट मेनी मल्टीपल बिजनेसेस जो हर एक फील्ड में हो, हर एक नीश में हो। तो ऐसा ही, एंड इवन सोशल ग्लोरी में भी, इवन कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सिर्फ कैफेज करती है, जो सिर्फ ब्रांड्स करती है, जो सिर्फ फैशन करती है, या अलग अलग नीश करती है। बट फॉर नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग। मैं ज्वेलरी भी कर रहा हूँ, मैं फैशन भी कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्रीज मतलब इवन मैं फैक्ट्रीज का भी शूट करता हूँ, मैं एक्टर्स का भी शूट करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी नीश में नहीं हूँ अभी तो लेकिन फिर इतने नीशेस को केटर करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड some kind of a partner something, but as you said कि you don't want any partner, तो कैसे फिर आगे फ्यूचर में मतलब किसी को-फाउंडर को लाने का है, या फिर फर्स्ट टॉप ऑफ द लाइन बनाओगे, सेकंड बनाओगे, और फाउंडर सिर्फ आप? I have already made the first top of line. Okay. So and my team there are 2 people जो वेडिंग कंप्लीटली देखते हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ वन गर्ल जो पूरा सोशल ग्लोरी देखती है, एंड मैं तो आई एम अ फाउंडर, तो मेरे को तो सब कुछ ही मैनेज करना है। तो टॉप लाइन ऑलरेडी मेरी बन चुकी है, एंड अभी तक तो कोई प्लान नहीं है कि मैं इस टॉप लाइन को बढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि काम बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरा काम रुकेगा अब। एंड अभी जो टॉप लाइन है वो मेंटेन्ड है, और वही अभी सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ मैनेज भी कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ मैनेज कर रहा हूँ। इवन बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, बट दे आर सपोर्टिंग मी पूरी तरह से। मतलब इवन माय टीम इज वेरी गुड, जो उसने पूरा मेरे को इतना अच्छे से सपोर्ट कर रखा है अभी तक, एंड दे आर डूइंग लाइक कि वो उनका खुद का बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि वो खुद का बिजनेस मानते नहीं, वो पूरी खुद की अपना खुद का पूरा रोल निभाते हैं, और एवरीथिंग दे आर डूइंग वेरी गुड। बस मैं एक ब्लेस्ड हूँ यहाँ पे कि मेरी टीम बहुत अच्छी है।
तो उनको ट्रेन करने में आपको स्टार्टिंग में टाइम लगा या बहुत जल्दी सीख गए वो लोग? वेल स्टार्टिंग से जो अभी इन 3 जनों में है, स्टार्टिंग से देयर वर पर्सन जिसको आता था काम एंड बस थोड़ा सा लैक था चूंकि आई रिकवर्ड। फिर वहां से जो अभी ऑलरेडी है उनको थोड़ा थोड़ा बहुत आता था, बट मैंने भी सिखाया और इवन मेरी जर्नी में उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली। खुद मैंने मतलब इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता, बस मैंने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखा है और अभी सब कुछ एकदम अच्छे से आता है। आप कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा है। Okay, so that is something very interesting. One last question that I want to ask कि when it comes to startup and business, right? India में mentality है कि if you have a great idea, if you have a good idea, then only you can start a startup. तो after listening to your journey, कितना आपको लगता है कि आइडिया इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, या वो कौन सी ऐसी चीज है जो आइस ब्रेकिंग का काम करेगी, दैट व्हाइल यू आर थिंकिंग कि वन डे मुझे करना है एंड डे वन स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या पुश था जो आपको मिला, या आपने कैसे उसको स्टार्ट किया कि नहीं मुझे तो अब करना ही करना है, अब मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करूंगा इस चीज का, और आइडिया पे खेला, एग्जीक्यूशन पे खेला, क्या था वो चीज? सो फ्रॉम द स्टार्टिंग आई सेड अभी भी कि सोशल ग्लोरी इज नॉट अ स्टार्टअप, ये हर कोई कर रहा है, हर किसी की सोशल मीडिया एजेंसी है, हर किसी की कंटेंट क्रिएशन एजेंसी है। मेरे को जो अपस्केल करती है, मेरे को जो साइड करती है, जस्ट माय क्रिएटिविटी एंड जस्ट माय क्वालिटी, माय कस्टमर रिलेशन जो मैं मेंटेन करके चलता हूँ। इवन मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं मैं सबको 1-to-1 जानता हूँ, सबकी मेरी 1-to-1 बात होती है। हर किसी कस्टमर से मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको खुद सॉल्व करता हूँ। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो मेरे को बहुत अलग करती है और बहुत अपस्केल करती है अदर एजेंसीज से, क्योंकि मतलब इवन आप मुझसे पूछोगे कि तुम्हारा सोशल मीडिया पैकेज क्या है, तो आई डोंट हैव एनी पैकेज। मैंने कभी मेरा पैकेज बनाया ही नहीं है, क्योंकि व्हाट आई डू इज कि इफ सपोज इफ यू आर माय क्लाइंट, तो आपने मुझको अप्रोच किया एंड व्हाट आई से इज कि आई डोंट हैव एनी पैकेज, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, आप मुझे अपना सब कुछ बताइए, उसके हिसाब से मैं आपका पूरा प्लान कस्टमाइज करूंगा, खुद की हिसाब से पूरा, खुद की क्रिएटिविटी, मेरी टीम की क्रिएटिविटी के हिसाब से पूरा प्लान बनाऊंगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन प्ले होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को बोल दिया, कुछ एजेंसी होती है सर कल से काम चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मुझे 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं कि उसके कॉम्पिटिटर भी देखूं, उसका अदर चीजें देखूं कि वो क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे, उनके आगे के प्लान्स क्या है, उस अकॉर्डिंग सोशल मीडिया को प्ले करूं। तो ये मेरा ऐसा रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा लगता है कि मैं अलग हूँ दूसरों से। करेक्ट, यही मुझे डिफरेंट बनाता है। और एज सच कोई आइडिया रिक्वायरमेंट नहीं होता, जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट, वो हो जाता है अपने आप। हाँ, बट इन दिस जर्नी आपको अपने आप कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं। आपका दिमाग अगर काम कर रहा है ना तो आपको आइडिया आते जाएंगे। और अभी भी आई हैव वन प्लान जो कि अभी जयपुर में तो कोई नहीं कर रहा, है ना। और इफ वो ऐसा है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो 100% होगा, अगर नहीं हुआ तो 0 स्क्रैच हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा रिस्क है और इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4 months और मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा इसके। तो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट अगर हुआ तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे को शायद 100x से ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा। Okay, great. So any last tip that you want to give to your upcoming future entrepreneurs? Because हर किसी को ये होता है कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लूँ या फिर ग्रेजुएशन के साथ ही एक बार स्टार्टअप कर लूँ। तो what are those 3 advice that you want to give कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें ये करो, एटलीस्ट ये स्टार्टअप करो। ऐसे कौन से 3 एडवाइस है जो अपकमिंग स्टूडेंट्स को या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर को? 3 का तो पता नहीं, बट आई कैन गिव 1। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। जीसी आ जाओ, स्टार्टअप कर लो। बेसिकली यही है। मतलब ठीक है, अगर कोई एडवाइस पे अगर मैं किसी को कहूँ, किसी भी स्टूडेंट को, अपकमिंग स्टूडेंट को, बस यही है कि जरूरी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें पढ़ाई भी 100% करनी है। तुम पढ़ाई भी करो, डिग्री तो लेनी ही है, बट स्टार्टअप के अंदर तुम बस दिमाग लगाते जाओ, तुम स्टार्टअप की चीजें पढ़ते रहो, तुम्हारे दिमाग में बस एक चीज डाल लो कि तुम्हें कुछ करना है और फिर अपने आप वो दिमाग में आता रहेगा। ऐसे नहीं है कि मेरे को स्टार्टिंग से ही सोशल ग्लोरी करना था। मैंने क्लोथिंग ब्रांड पे 2 महीने रिसर्च करी है, उसके बाद मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, सेकंड इंडस्ट्री बहुत क्लटर्ड है। करेक्ट। तो मेरे को नहीं लगता मैं वहां सस्टेन कर पाऊंगा, इतनी डिजाइनिंग स्किल्स वगैरह मेरे में थी नहीं। तो मैंने वहां वो छोड़ा। उससे पहले भी आई वाज डूइंग वन बिजनेस जो मैंने पापा के लिए किया था। मैंने पापा की पूरी मार्केटिंग संभाली थी, पूरा जो इवन ऑफलाइन जाकर मैंने एक कैफेज को अप्रोच किया था। आई हैव अ मिल्क फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो मैंने जितना भी मिल्क फूड का हमारा सामान है उसको ऑफलाइन जाके अप्रोच किया था एंड आई मेड अ सेल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11 lakhs पर मंथ।
पापा के लिए। राइट। तो वहां से ही एक मन था, बस तुम्हारे मन को बनाना पड़ता है कि तुम्हें बस कुछ करना है, बस फिर वहां से अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी से सीखने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस जो आपने स्टार्ट किया, और अभी सिर्फ 2 साल कंप्लीट हुए हैं, एंड सर कि 1 साल अभी तक पूरा बिजनेस को हुआ भी नहीं है। अगस्त में स्टार्ट हुआ है, अगस्त में होगा अभी आने वाला है, राइट। अभी तो 6 मंथ 7 मंथ्स में ही इतना रेवेन्यू कर लिया, एंड यू आर अर्निंग वेल, यू आर एबल टू मैनेज 8 to 10 पीपल टीम, फुल टाइम उनको सैलरी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, टीम को मैनेज कर रहे हो, फाइनेंशियल्स को मैनेज कर रहे हो, फ्यूचर प्लान्स हैं। तो आई थिंक इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने कॉलेज डेज में, अगर आप कर भी रहे हो तो, राइट। इतने मतलब फेल्ड स्टार्टअप लोग होते हैं तो उसका वो जश्न मनाते हैं, लाइक ओके चलो मैंने फेल स्टार्टअप तो कर दिया। यू आर रनिंग ए सक्सेसफुल स्टार्टअप, यू आर अर्निंग वेल। और वही है, फेल्ड स्टार्टअप और सक्सेसफुल स्टार्टअप में डिफरेंस ये है कि आइदर यू हैव अ पॉजिटिव कैश फ्लो और अ नेगेटिव कैश फ्लो, राइट। तो अगर फिर भी आप उसको पॉजिटिव या एटलीस्ट ब्रेक इवन पे भी ला रहे हो, आई थिंक दैट इज वेरी गुड। या आई फील गुड, बट अभी मेरे जो गोल्स हैं, जो मेरी चीजें हैं, जो मुझे सिखाई गई है, वो बहुत आगे है अभी भी। तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट फॉर मी, इट्स नॉट कि मैं सक्सेसफुल हो गया, या मेरे लिए अभी सक्सेस तो कुछ है ही नहीं। करेक्ट। और सक्सेस का एज यू नो, एज वी ऑल नो, कि सक्सेस की कोई डेफिनेशन अभी तक है ही नहीं। yes. क्योंकि इंसान को अगर वो वहां तक पहुंचता है तो फिर वो आगे की सोचता है कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है। तो एज सच कोई मेरे लिए अभी सक्सेस की डेफिनेशन है नहीं, और बस मेरा अभी यही रहेगा कि और आगे तक करते जाऊं। मतलब आई डोंट इवन स्टॉप टिल माई 50s तक। तो मेरे को बिजनेस करना है, और ये मेरे अंदर ही है कि मुझे बिजनेस का कीड़ा है, और मुझे बिजनेस तो करना ही है। तो बस ऐसा ही है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, दैट हाउ वंश स्टार्टेड। ऐसा नहीं है कि पैसे होंगे तो ही मैं स्टार्ट करूंगा, ग्रेट आइडिया होगा तो ही मैं स्टार्ट करूंगा। इवन इफ यू स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, जो सब लोग कर रहे हैं, बट आप एटलीस्ट करते हो, एंड इन दैट जर्नी और प्रोसेस यू लर्न समथिंग न्यू एंड यू गेट समथिंग न्यू, बिकॉज आप लोगों से मिलते हो, नया आइडिया मिलता है, और फिर वो आइडिया आपको क्लिक करता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि फर्स्ट आइडिया आपको क्लिक करेगा तो वही सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आपको 10th आइडिया काम करे, हो सकता है 50th आइडिया काम करे। एज वंश मेंशन दैट उसने पहले कम से कम 4-5 आइडियाज पे, 4-5 बिजनेसेस पे हैंड्स ऑन किया, उसके बाद उसको समझ में आया कि यस दिस इज माय कोर एक्सपर्टीज, और वो भी आपको करने से समझ में आएगा। अनटिल अनलेस यू एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस, आप नहीं समझ पाओगे, एंड आई थिंक दैट इज द ओनली एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस। Yes. So thank you so much, Vansh. Thank you so much for coming, and guys, thank you so much for watching this video. And if you have watched till now, then don't forget to like the video, subscribe to the channel, and ऐसे ही और videos के लिए, insightful content के लिए follow GCC Global Foundation on all the social media platforms. We'll catch you later with another entrepreneur. See you soon. Thank you so much.